ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਵਿਆਹੁਤਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਨੇਵੀ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਤੀ ਸਮੇਤ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਗੋਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਤੀ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ 25 ਸਾਲਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਥਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਗਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ 21 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਪਿਹੋਵਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਸਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਕਲਰਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਨੀਲਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਕਲੌਤੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੇਠ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਿਮਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹੀ ਆਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਹੇਜ ਮੰਗਿਆ जा रहा है। 25 में और जैसे ही हमने शादी की तारीख पक्की करी थी जी, तो मेरे फादर साहब की थी जी। उसके बाद से इन्होंने शुरू से ही लड़की मतलब मेरे को फ़ोन आया कि बेटे ऐसे करके बात आ, हमारी तुम्हारे पिता से तो बात हो चुकी है और हमारे ना जी जैसे सेट मिलनी होएंगी, हमारे मिलने के अंदर कोई भी मतलब खिस्सी नहीं देनी है, कंबल नहीं देना, सपारी सूट की मिलनी करनी है जी। और बेटे हाँ, और जी जैसे कि है कि मैंने कहा अभी मेरे पास जी बजट नहीं है, ठीक है, मैं अपना ठीक है सिस्टम इतना है नहीं है, तो जी बोले भी आपने कोई पैलेस पुलिस वगैरह बुक करवाया है? मैंने कहा जी हमारे गांव के अंदर कम्युनिटी हॉल है, हम वहाँ पे प्रोग्राम करेंगे जी। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं भाई हमारे पढ़े लिखे लोग आएंगे, जो रिश्तेदार है सारे अच्छे वेल ग्रेजुएटेड है, अभी हमारी बेइज्जती हो जाएगी, कोई अच्छा सा होटल या पैलेस देख के बढ़िया तगड़ा प्रोग्राम करना पड़ेगा। यहाँ तक कि भी बोला भाई अभी ऐसे करके आपने ये कुछ बनवाना है, ठीक है जी। मैंने अपने परिजनों से बात करी जी, मेरे चाचा जी हैं, मेरे मामा जी हैं, मैंने कहा भी ऐसे करके बात है भी मेरे ना तो मेरा बजट है और मैं कैसे करूँगा ये सब। तो मेरे मामा और चाचा जी बोले भी बेटे पैसे के लिए तो परेशान नहीं होना, हम तेरे साथ खड़े हैं जी। लेकिन जैसे शादी करी जी, जैसा फिर भी मैंने जितना मेरे पे था भी मैं कर्जा ज़्यादा से ज़्यादा ना चढ़े मेरे पे भी, जितना को भी कम से कम मैं सार लूँ। उसके बावजूद भी जी मैंने बिल्कुल ही मतलब बैंक पे तो लोन ले गया, आड़ती पे तो कर्जा ले गया, मैंने शादी करी जी बहुत बढ़िया लेवल के ऊपर जी। उसके बाद ही शादी के दूसरे दिन ही बाद ही लड़की को ताने मारने शुरू कर दिए कि आपने बेइज्जती करवा दी, हमारे पढ़े लिखे लोग थे, हैं जी, आपने मिलनी में 50-50 रुपये डाल दिए, ये कर दिया वो कर दिया जी। वो छोरी इतनी मैं परेशान हुई ना जी, वो ना बता सकी। जब भी फ़ोन पे बात करते थे साथ में मतलब जो उनकी सासू जी थी वो पास में बैठ के बात करवाते थे जी। जब लड़की को जो लड़का है जी नितिन है जो घर वाला है,
वो नेवी के अंदर है जी। ठीक है जी, वो 1 महीने की छुट्टियाँ हुआ था। जैसे शादी के बाद एक रीति रिवाज होते हैं जी, 2-4 दिन के बाद लड़की अपने घर वापस चली आती है जी। तो तब भी जी उन्होंने नहीं नहीं हम ऐसे नहीं भेजेंगे जी, अभी लड़का हमारा 1 महीने की छुट्टी पे है, फिर पता नहीं कब आएगा, क्या होएगा, कैसे सिस्टम बनेगा जी। तब भी नहीं माने। मैंने मेरे घर वालों को, मेरी दादी को बोला कि एक लड़की अपने शरीर में भी थोड़ी ठीक है भी, आप ऐसे मत करो भी, इसको ले आओ। उसके बावजूद भी जी हमने बहुत रिक्वेस्ट करी भी आने दो। जब लड़की 1 महीने के बाद आई जी, उसने पता नहीं क्या क्या बताया, मैं आपके साथ वो बयान नहीं कर सकता जी, क्योंकि मैं एक बहन का भाई हूँ जी। ठीक है जी, उसने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि भी मेरे को फिजिकली भी हरासमेंट करा है। ठीक है जी, और उसने जब अपने घर वाले को बोला कि नहीं मेरे को दिक्कत हो रही है, तो वो हटा नहीं जी। तो उसने अपनी सासू माँ को बताया कि ऐसे ऐसे करके बात है। उसके बावजूद भी उसकी सासू बोली बेटे नहीं, ये तो ये करा है मेरे फादर गुजर चुके हैं जी। उसके दिमाग में पहले इतनी टेंशन है, उसको प्यार करने की बजाय जी दुत्कारने लग गए, तेरे को खाना नहीं आता, तेरे को बनाना नहीं आता। वो पैसे वाली बात तो लेना, उसके बावजूद भी कभी मिलने में 50 रुपये डाल दिए। मैंने बोला था कि तुमने कंबल नहीं देने, खेसी नहीं देनी, फिर भी तुमने लोई दे दी। मिलने में 50 रुपये डाल दिए, कभी कुछ जी कभी कुछ। और कोई भी तीज त्योहार आ गया बोल बोल के बेटे ऐसे देना, ये देना है। फिर बाद में ताने दे रहे हैं जी, जो मेरी जिन्होंने जब चोले से रिश्ता करवाया था, ठीक है, वो बोल रहे भी ये तो ऐसे ऐसे बोल रहे थे कि ये तो गाड़ी भी दे देंगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। ऐसे है जी, वह पता नहीं जी क्या क्या बोल रहे। जब भी लड़की घर आती थी जी, तो मतलब बताती थी ना, रोने लग जाती थी। पहले तो रोती थी जी, फिर वो बातें बताती थी जी, ऐसे हो गया जी, वैसे हो गया, मेरे को ऐसे बोलते हैं। कैसे सूचना मिली, क्या मैं जी कल ना करनाल किसी काम से जा रहा था दुकान के, तो जी मैं कुरुक्षेत्र पहुंच के बस में से उतरा था। मेरे साथ एक मेरा ताऊ जी का लड़का था, मेरे पास जो रवि इनका जेठ जी है, जो मेरी बहन का जेठ था जो, उसके मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे करके ना सिमरन ने ना कर लिया भाई, मेरे बस से बाहर हो गई है, अरे भाई तू आ जा। तो मेरा तो सुन के जी मैं अकेला मतलब बस के अंदर जी, मैं क्या तो करूं क्या ना करूं जी, मेरे खुद को नहीं समझी। मैं मेरे तो अभी तक मेरे पिता का सदमा ही नहीं अभी दूर हुआ जी, दिल पे था। मैं बताओ जी मैं कहाँ पे। जब गए तब क्या देखा वहाँ? जब हम गए जी तो मेरी बहन को बेड के ऊपर लेटाया हुआ था। सभी जितने भी परिवार वाले, देखो जी किसी के घर के अंदर अगर कोई कुत्ता भी पाल लेता है ना जी, वो मर जाता है, तब भी लोगों के आंखों से आंसू आ जाते हैं जी। हम गए ना वहाँ पे जी, कोई भी हमने कोई रोंदा नहीं देखा, किसी के चेहरे के ऊपर कोई भी गम नहीं था 1% का भी जी। नहीं भाई, ये बोल रहे हैं जी हमने जो डॉक्टर था गांव वाला, उन्हीं से हमने दिखाया है, वो खत्म हो चुकी है जी मौके पे। शादी हुई थी वो छुट्टी पे था, ये आया हुआ था या ड्यूटी पे? वो ट्रेनिंग पे जा रहा था जी, लेकिन फिर हमें सुनने में आया भी वो 2 दिनों के यहीं पे था जी। हमें इस चीज़ के पुख्ता सबूत नहीं, हम ऐसे बोल रहे हैं, हमको बताए भी गया भी उसने दिया जी। बस मैं तो इंसाफ की मांग करता हूँ जी आप सभी से। मैं कहाँ पे जाऊँ जी? मेरा नाम मोहित है जी। क्या करते हो आप? मेरी सुनार की दुकान है जी गांव में छोटी सी। ठीक है। और क्या कुछ पूरा मामला? सामने देखिए, नमस्कार जी, मेरा नाम सीताराम है, गांव किठाना है। सामने जी। ये मेरी ज्योति लगती थी, बैगल गांव से है। इसकी शादी गांव सरसा में करी हुई थी। सामने देखो, बड़े हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक इनकी शादी करी। अच्छा, इसके पिताजी लड़की का 2-3 महीने पहले एक्सपायर हो गया था एक्सीडेंट में। फिर भी ये बोले इसकी हम तो पैलेस में शादी करावाएंगे, पैलेस में शादी करावाएंगे। उन पर बेचारांगे इतना गरीबी थी, ब्योत नहीं था। फिर भी उन्होंने बोला भाई चल हम पैलेस में कर देंगे भी, कैसे भी उन्हें कर्जा लिया बेचारा ने। फिर वो बोले हमारे को 6 गुट्ठी चाहिए, सेट मिलनी चाहिए, सबके बढ़िया बढ़िया कपड़े चाहिए, टेलीविजन, फ्रिज, शिप सारी जो भी हमने जी लेकर बाजार में से उनको दिया। मैं उसका नाना लगता हूँ, हमने पूरा उसको दिया। फिर वो उसको आके तंग करने लगे, हमारा तो बहुत तकड़ा परिवार है, तो भूखे परिवार की कैसे आएगी, ना तू गाड़ी ले आई, क्या तुम्हारे गाड़ी का भी ब्योत नहीं था? वो बोली मेरे पिताजी नहीं है, मेरा भाई मेहनत मजदूरी करे, कहाँ से गाड़ी देगा? जब शादी से पहले हमने ये कह दिया था लड़की लड़की है, वो बोले ठीक है हमारे को लड़की चाहिए। लेकिन वो बाद में दहेज मांगने लग गए, बार बार टॉर्चर करे थे, मानसिक शारीरिक रूप से परेशान करने लगे। उसका जेठ, जेठानी और उसकी सास और उसके घर वाला चारों मिलकर उसके पीछे पड़ गए। छोरी को बार बार तंग करने लगे, कई बार मारपीट भी करी, घर से भी निकाल दिया। वो बेचारी फिर उसको लेके घर आ गई थी। फिर वो जब बैगल में आए तो उनको हमने समझाया भाई देखो दोबारा तंग नहीं करना, गाड़ी गुड्डी का तो नाम ही नहीं लेना, कहाँ से देंगे बेचारे। वो बोली जी ना नहीं, ये बस एक बार भेज दो, एक बार। संक्रांत से 1 दिन पहले लेके हुए आया कहा जी, लड़की बिल्कुल कायम रही थी कि मेरे को मारेंगे, मेरे को मारेंगे। लड़की पहले कह रही थी मेरे को मारेंगे, मेरे को मारेंगे, तभी ले जाए। वो चारों थे जी। उन्हें तो जब कल फोन आया 12 बजे हमारे को, भाई आपकी लड़की कर गई है। जब हम गए उसके गले में निशान थे, ना वो फंदे पे थी, नीचे पड़ी हुई थी, जैसे छिपकली पड़ी रही वैसे 4 पाँच पे ऐसे पड़ी थी। हमने निबेरा
उसको कैसे भी मारा या वो अपने आप मरी या कैसे मरी। उन्होंने तो वो तो दहेज के लालची हैं, बहुत भूखे हुए हैं, गिरे हुए आदमी हैं। उन्हें मेरी ज्योति को बलि का बकरा बना दिया। अभी 9 महीने भी नहीं हुए, 6-7 महीने हुए थे। लड़की किस गांव की? इस मार्च को बैगल गांव की थी जी। हाँ जी 10 महीने हुए तकरीबन। हाँ। नाम तो क्या है और कितनी उम्र है? सिमरन है जी, 25 साल 25 साल की है। तो लड़के का नाम सिमरन था, 25 साल की उम्र थी उसकी। उसके पिताजी नहीं रहे थे, एक्सीडेंट में पूरे हो गए थे। उसके 2 भाई हैं, वो बेचारे मेहनत मजदूरी तो कराए। पहले कभी कोई पंचायत वगैरह हुई है इस गांव में जो अपने परिवार की वजह से जो रिश्तेदारी की दूसरे आदमी ने बुलाए थे, भाई खाम खाई बात उछलेगी। जो अपने परिवार, वो भी 3-4 थे इनके परिवार के, और हमारे भी उनके परिवार। उनको भी समझाया भाई इस पर कुछ नहीं था, बेचारी वह लड़की पूरी एक्टिव है, JBD पास है, सारा काम करा है। भाई अगर सारे इसको परेशान करोगे, ताने मारोगे, फिर ठीक नहीं है। हाँ, ये तो नहीं, हमने वो उसका पर्चा दर्ज करवाया था। लड़के का क्या नाम और क्या करता है वो? लड़का जो शादीशुदा, उस लड़के का नाम नीतन है और नेवी में है। वो जब भी फोन करता था या धमकाता था, अब जब मैं छुट्टी आऊंगा मेरे को तेरी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए, तो ठीक नहीं है, एक्टिव नहीं है, क्या तुम्हारा गाड़ी देने का ब्योंत नहीं था? तेरे को पता था मेरे दादाजी कितने तकड़े थे, हमारे तने तो बट्टा लगा दिया, तो भूखे घर की आ गई, तेरे को रोटी भी नहीं बनानी आती, खाना भी नहीं खाना आता। मार पिटाई भी होती थी कभी? मार पीट का कई बार घर से भी बाहर निकाल दिया था उसने। एक दिन 6 घंटे बाहर बैठी थी, हमारे को नहीं पता लगा। कंप्लेंट दी है कभी पुलिस में? नहीं होता जी। शुरू में बच्चा थोड़ा सेटिंग इसी नहीं होता, भाई उनको ही समझाया, भाई चलो हो जाएगा, कोई बात अब नहीं। क्या कार्रवाई चाहते हो आप? अब हम उनके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आगे भी कोई ऐसे विवाहित को दहेज की बलि का बकरा ना बनाए। ठीक है, उनको सबक सिखाया जाए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। धन्यवाद। मेरा नाम सीताराम है, गांव के ठाना में उस लड़की का द्योता था। वह लड़की मेरी द्योती है, उसका नाना जी हूँ मैं। कल ये सूचना प्राप्त हुई गांव सहरसा से भी एक लड़की ने कर लिया है। तो इस सूचना पर हम गांव सहरसा गए और वहां पर हमने इसको उतरवा करके हॉस्पिटल में रखवाया। और लड़की जो मृतका है सर्वजीत को, उसके भाई के बयान पे FIR दर्ज कर दी है। तो परिवार ने कुछ आरोप भी लगाया ससुराल पक्ष में? हाँ, परिवार ने दहेज से प्रताड़ना का आरोप लगाया और 3 धाराओं के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। तो अब ये गिरफ्तार भी किया? अभी पूछताछ के लिए राउंड अप किए हुए। तो पोस्टमार्टम पैनल पे हाँ, पोस्टमार्टम बोर्ड द्वारा कराया जा रहा है। कितने लोगों के नाम शामिल है इसमें? में 4 लोग हैं, पूरे परिवार के 4 लोगों के खिलाफ है। कौन कौन है सर बताओगे? उनके पति, सास, जेठ और जेठानी।